So let's begin the session. In the last class, what we have discussed about the quantum numbers in the last class, and we have seen there are mainly four quantum numbers. The principal quantum number tell you the shell, the angular momentum quantum number will tell you the subshell, right? Magnetic quantum number will tell you the orbital, and the spin quantum number will differ to electrons present in the same orbital. It has two value, plus half and minus half. That things we have studied. Now in this class we are going to mainly focus about the shapes of orbital. ऑर्बिटल का शेप कैसा है? सबसे पहले तो बच्चों ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. राइट, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर probability of finding the electron is maximum, and that regions are called as what? Orbital. And we have seen for single electron species like hydrogen, the wave function psi indicates what? Orbital. Wave function psi indicate what? Orbital for the species like hydrogen. Okay, so your first topic today is, we will follow the NCERT textbook point by point. The first is your shapes of atomic orbital. Okay, shapes of atomic orbital. Fine. Here I will write here what is orbital. Orbital is the region where probability of finding the electron is maximum, right? So orbital is the region where probability of finding electron is maximum. Okay, and we have seen yesterday psi is called as wave function, and this psi has no physical meaning. We have seen that it has no physical meaning. Psi को कोई physical meaning नहीं है, right? But for different values of principal and angular momentum quantum number, the value of psi will also be different. Okay, fine. And we have seen that if you will do psi square, this psi square has the physical meaning because it indicate probability of finding the electron around the nucleus. इसको हमने बच्चों probability density function कहा था. क्या कहा था? psi square को हमने probability density function, right? So I will write this psi square is probability density. Psi square क्या है बच्चों? It is a probability density, and it has the physical meaning. It will indicate you probability of finding the electron. What it indicate? Probability of finding electron. It indicate what? Probability of finding the electrons. Oh, psi square. Now let's plot the graph of psi versus distance and psi square versus distance for 1s and 2s orbital. Okay, so we will plot the graph. First we will plot for n equal to 1, l equal to 0. This indicate 1s orbital. Okay, and here we will plot it for n equal to 2, l equal to 0, that is the 2s orbital. First we will plot the graph of psi versus r, that is wave function distance के साथ किस तरह वेरी हो रहा है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस के साथ वेव फंक्शन कैसे वेरी हो रहा है. प्रैक्टिकली तो नहीं कहेंगे, बट थियोरेटिकली इट इज obtained from the Schrodinger wave equation, and when the graph is plotted, the pattern of graph is somewhat like this. This is the pattern of the graph of psi versus r. This is the pattern of graph of psi versus r for 1s orbital, and the same graph psi versus r for 2s orbital. If you find psi versus r, probability function versus distance, if you obtain it for the 2s orbital, the shape of the graph is somewhat like this. This is the shape of graph for 2s orbital. कहां से आया बच्चों? इससे हमें मतलब नहीं है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था. ओके, उसको सॉल्व कराओगे तो साई का इक्वेशन मिलेगा, और वो इक्वेशन को जब प्लॉट कराओगे वैल्यूज को, देन यू विल गॉट दिस काइंड ऑफ द ग्राफ. नाउ दिस साई वर्सेस आर हैज नो फिजिकल मीनिंग. इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. बट इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर वर्सेस आर, if we plot the graph of what? Psi square versus r, then for this 1s what will we get? The graph of psi square versus r for 1s orbital is somewhat like this. The graph of psi square versus r for 1s orbital will be somewhat like this. Okay, and the graph of psi square versus r for 2s orbital
Okay, this psi square versus r for 2s orbital will look like this. These are the graph of psi versus r, and these are the graph of the psi square versus r. Now, the psi has no physical meaning, but the psi square has the physical meaning. Psi square will tell you the probability of finding the electron. So where the value of psi square is more, probability of finding the electron is also more. Yes or no? So I can say for the 1s orbital, the value of psi square is maximum here. Here you have the maximum value of the psi square, then that is a very close to nucleus, because यहाँ पे ये zero distance है nucleus, और उसके पास में ही पूरा probability density का value है. So in this graph I can say probability of finding the electron decrease very rapidly with distance. What does it mean? It means there is maximum probability of finding the electron very close to the nucleus in the 1s orbital. क्योंकि 1s ऑर्बिटल में जो psi स्क्वायर का ग्राफ है ना, वो न्यूक्लियस के पास वाले रीजन में बहुत ऊपर तक है. Is it clear? That means in 1s orbital there is maximum chances of finding the electron very close to the nucleus. And if you will go away from the nucleus, probability of finding the electron will decrease very rapidly. और इसके बाद देखो ग्राफ तो जीरो पे आ गया, मतलब इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ही नहीं है 1s ऑर्बिटल में. Now what in the 2s orbital? Okay, same case 2s orbital also. There is very high probability of finding the electron very close to the nucleus, as you can see. Yes or no? Yes or no? And that probability decreases to zero in some particular distance. At this distance I can say the psi square value is 0. As the psi square is 0, probability of finding the electron is also 0. Means at this distance there is no possibility of finding the electron. And this region, when there is no probability of finding the electron, is called as nodes. What is it called? Node. क्या कहते हैं उसको? Node कहते हैं when there is no chances of finding the electron. So in this particular region I can say psi square is 0, means there is no chances of finding the electron. There is no chances of finding electron. There is no chances of finding the electron in this region, and this region is called as what? Node. So what is node? Node is that region around the nucleus where probability of finding the electron is 0. Node is that region around the nucleus where probability of finding the electron is 0. मतलब उस region में electron मिलने के chance ही नहीं है. Now after the node again you can see psi square का value थोड़ा ऊपर गया. मतलब again after this distance there is some chances of finding the electron, and then finally it becomes 0. Is it clear what is happening with the 2s orbital? Are you getting it? Are you getting it? What is happening with the 2s orbital? Okay, there is very high probability of finding the electron near the nucleus. That probability will reduce to 0 at some distance. And that region where there is no chances of finding the electron is called as nodes. Right? And after that again there is some region where you will see the probability of finding the electron, because psi square has some value. And finally the psi square will become 0 forever. मतलब इसके बाद तो 2s में electron मिलना ही नहीं है. Are you getting it? So here we have introduced the concept called as node, and we will discuss a lot of. Let's write here the definition of the node. Node is the region around nucleus where probability of finding electron is 0. Okay, and for s orbital the number of nodes are n minus 1. We will write about the detail also. For ns orbital the number of nodes are n minus 1. For ns orbital number of nodes are n minus 1. That is, if it is 1s orbital, the number of node is equal to n minus 1, that is 1 minus 1, node is equal to 0. If it is 2s orbital, node equal to 2 minus 1, that is 1. If it is 3s orbital, node is equal to 3 minus 1, that is 2, and so on.
So number of node for the ns orbital is n minus 1. Okay, ready everyone? चलो बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्बिटल. क्या होता है और कैसे मिलता है ऑर्बिटल. ओके, सो बच्चों देख लो ऑर्बिटल का पूरा कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना है. एंड द कंसेप्ट इज द बाउंड्री लेयर डायग्राम. व्हाट इज द कंसेप्ट? बाउंड्री लेयर डायग्राम. Now you will ask what is the boundary layer diagram? So boundary layer diagram is the curve which is passing from the point having the same value of probability of finding the electron. In short, ऐसा कर्व जो ऐसे पॉइंट में से पास होगा जिनका साई स्क्वायर का वैल्यू कैसा होगा? सेम होगा. बिकॉज साई स्क्वायर का मतलब भी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. राइट. ओके, सो आई विल से बाउंड्री सरफेस इज द कर्व passing from the points around the nucleus having constant value of psi square. राइट. तो ऐसे ऐसे पॉइंट जिसका साई स्क्वायर सेम है उसमें से पास होता हुआ जो कर्व है ना उसे कहेंगे बच्चों हम बाउंड्री लेयर. सपोज मान लो ये न्यूक्लियस है. ओके, और साई स्क्वायर का वैल्यू सपोज यहां पे x है, 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 यहां पे x है. तो ये सारे पॉइंट के ऊपर साई स्क्वायर का वैल्यू सेम है. ओके, तो ऐसा कर्व जो इन सब पॉइंट में से पास होगा जिनके ऊपर साई स्क्वायर का वैल्यू सेम है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बाउंड्री लेयर डायग्राम कहते हैं. समझ में आया आपको बाउंड्री लेयर डायग्राम क्या है वो? ओके, अब बच्चों बेसिकली क्या होगा कि न्यूक्लियस के आजू बाजू ऐसे आपको बहुत सारे बाउंड्री लेयर डायग्राम मिलने हैं. न्यूक्लियस के आजू बाजू वी विल हैव नंबर ऑफ बाउंड्री लेयर डायग्राम. तो ऑर्बिटल किसे कहेंगे? तो सारे बाउंड्री लेयर डायग्राम में से ऐसे बाउंड्री लेयर डायग्राम जिनके अंदर या जिनके लिए इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 90% से ज्यादा है, उस बाउंड्री लेयर डायग्राम को हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल. समझ आया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है वो? ओके, तो आई विल राइट हियर अबाउट द ऑर्बिटल. ऑर्बिटल इज the boundary layer having probability of finding electron more than 90%. तो ऐसा रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 90% से ज्यादा है ना, उस रीजन को हम कहते हैं बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल. बोलो क्या कहते हैं हम उस रीजन को? एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं. चलिए आपको समझ में आ गया ऑर्बिटल का पिक्चर क्या है वो? क्लियर एकदम आपको पूरा समझ में आ रहा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है वो? श्रोडिंगर ने पहले एक इक्वेशन बनाया, उस इक्वेशन को सॉल्व करके साई का वैल्यू निकाला. साई का कोई मीनिंग नहीं था, उसके बाद साई स्क्वायर निकाला गया. साई स्क्वायर से पता चला गया ये तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस दिखाता है. फिर ऐसे ऐसे पॉइंट जहां पे साई स्क्वायर सेम है उसमें से पास होता हुआ कर्व बनाया गया. दैट वाज द बाउंड्री सरफेस डायग्राम. और उस बाउंड्री सरफेस डायग्राम में भी ऐसा डायग्राम जिसके इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 90% से ज्यादा है उसको कहते हैं बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या कहते हैं उसको? हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं. बोले पूरा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में आया आपको? इज इट क्लियर एंटायर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन ऑल द ऑर्बिटल्स. एंड द फर्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट द एस ऑर्बिटल. राइट, तो सबसे पहले बच्चों जो एस ऑर्बिटल है उसका जो बाउंड्री लेयर डायग्राम है ना दैट इज स्फेरिकल. फॉर एस ऑर्बिटल बाउंड्री लेयर डायग्राम इज हाउ? स्फेरिकल. सो दे हैव स्फेरिकल boundary layer diagram. Means these orbitals are how of what shape? Spherical. These orbitals are of what shape? They are the spherical orbital. कैसा होगा बच्चों ये ऑर्बिटल आपका? स्फेरिकल होगा. कौन सा? S वाला. राइट, तो the S orbitals are spherical. स्फेरिकल का मतलब क्या है बच्चों? स्फेरिकल ऑर्बिटल का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कैसे है? सेम है. क्योंकि स्फीयर है ना, स्फीयर के सेंटर पे न्यूक्लियस है तो चारों तरफ सेम डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कैसे होंगे बच्चों? यहां पे सेम होंगे. सो वी विल राइट हियर न्यूक्लियस एट सेंटर एंड probability
of finding electron is same at same distance from nucleus in all direction. चलो बच्चों, तो 1s का शेप बताऊं आपको. 1s का जो शेप है ना वो कुछ इस तरह होगा. दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. और यहां पे कोई नोड नहीं होता है. 1s में कोई नोड नहीं है. ये कौन सा ऑर्बिटल है बच्चों? आपका 1s ऑर्बिटल है. 2s कैसा दिखेगा? देखो ध्यान से. दिस इज द 2s ऑर्बिटल, बट देयर इज अ रीजन वेयर देयर इज नो चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एज वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज नोड. राइट, तो नोड कैसे दिखाऊं बच्चों में? यहां पे आप देखना, मैं नोड कैसे दिखाऊंगा. कैन यू सी देयर इज अ रीजन एंड देयर इज नो चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन? कैन यू सी इट इन फिगर? कैन यू सी इट इन फिगर? देयर इज अ रीजन वेयर देयर इज नो चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज व्हाट? नोड. ये क्या है बच्चों? आपका नोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के कोई चांसेस ही नहीं है. समझ आ रहा है आपको? उसके सिवाय हर जगह पे लाइन किया हुआ है, बट वो बीच वाले पार्ट में लाइन गायब है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं है. राइट, इफ इट इज अ 3s ऑर्बिटल, तो 3s में क्या होगा बच्चों? 3s के अंदर ऐसे दो नोड आएंगे. लिखा ना अभी आगे हमने. 3s में क्या होगा बच्चों? इन 3s देयर आर 2 नोड्स, मतलब ऐसे दो रीजन बनेंगे. एक पट्टा बना, उसके बाहर एक और ऐसा पट्टा बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे. ओके, इफ यू राइट अबाउट द एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल, सो ऑब्वियसली बच्चों एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल जो है, जितना छोटा होगा s ऑर्बिटल उसकी एनर्जी भी कम होगी. जितना दूर जाता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा. तो सबसे कम एनर्जी किसका होता है बच्चों? 1s का. उसके बाद किसका एनर्जी होता है? 2s, फिर 3s, फिर 4s. दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी. सिंपल सी बात है बच्चों. इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास होगा ना, उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा. यस और नो? अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहेगा. यस और नो? अगर कोई बच्चा पहले बेंच पे बैठा है और जो बच्चा चौथे बेंच पे बैठा है, किसकी एनर्जी कम होगी? पहले वाले की कि चौथे वाले की? ऑब्वियसली पहले बेंच पे बैठने वाले की एनर्जी कम होती है, बिकॉज वो न्यूक्लियस मतलब टीचर के ज्यादा पास है. चौथे बेंच वाला जो है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहेगी. वो चालू में नाश्ता कर सकता है या कुछ भी नाटक कर सकता है. पहली बेंच वाला बेचारा कुछ नहीं कर सकता है ना, वो न्यूक्लियस के पास है. ओके, सिमिलरली इफ यू राइट अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, इट विल फॉलो द सेम ऑर्डर. साइज विल आल्सो फॉलो द सेम ऑर्डर. 1s सबसे छोटा होगा, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s एंड सो ऑन. इज इट क्लियर एवरीवन? व्हाट इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल? समझ में आ गया आपको 1s का शेप कैसा होता है या s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है वो? ओके, क्लियर है एकदम? पिक्चर बाउंड्री लेयर डायग्राम क्या है वो? चलिए बच्चों कॉपी. ओके, ये तो s की बात हो गई. s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल इन शेप विद द नोड्स इन बिटवीन. नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन with the p orbital. So now we will talk about the p orbital. So when the boundary layer diagram was drawn for the p orbital, it was found that the boundary layer diagram was of the shape of dumbbell. It is of shape of what? Dumbbell. And we know that for p orbital your L equal to 1. P orbital L equal to 1, and for this L equal to 1 magnetic quantum numbers are 3 possible values, that is -1, 0 and +1. Means there are going to be 3 orbitals. So in the case of P, let's say these are the 3 perpendicular axes x, y, z. As I want to draw 3 orbitals, I will take 3 sets of axes. Okay, fine. In the first case, the boundary layer diagram was in the form of dumbbell. Then that dumbbell was lying on x-axis. मतलब ऐसा रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है. This is the region where the probability of finding the electron is more, and this is quite similar to the dumbbell. This is quite similar to the dumbbell, and this single part is called as a lobe. The single part is called as what? Lobe of dumbbell. Right. So this is the region where there is maximum possibility of finding the electron in p orbital, and as this p orbital is lying along x-axis, it is called as px. What is it called? Px. What is the shape of orbital? Shape is dumbbell. Okay.
fine. In other case, the probability of finding the electron or boundary layer diagram was found to be lying on y-axis, like this. Okay, so along the y-axis there is maximum chance of finding the electron. Along the y-axis there is maximum chance of finding the electron, and it is called as Py. In the third case, there was maximum chance of finding the electron along the z-axis. कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस सबसे ज्यादा था? z एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस के एक तरफ, z एक्सिस के दूसरी तरफ. In that region there is more chances of finding the electron, and it is called as pz orbital. What is it called? It is called as pz orbital. क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम pz कहते हैं. Right now here you can see when the both lobes are touching, there is no chance of finding the electron at this point when there is no lobes are touching. So there is no probability or no chance of finding the electron at meeting point of the lobe. Okay, fine. Now one more thing. If we talk about the size and energy of p orbital, you will write size and energy of p orbital. Quite simple it is. Okay, सबसे छोटी साइज का p कौन सा होगा बच्चों? 2p. 1 में p नहीं आता है, p चालू होता है डायरेक्ट 2 से. 1 में तो खाली 1s आता है, 2 में आता है 2s एंड 2p. ध्यान रखना है बात. तो सबसे छोटा 2p होगा, उससे बड़ा 3p होगा, उससे बड़ा 4p होगा, उससे बड़ा 5p होगा, एंड सो ऑन. एंड एनर्जी इज ऑल्सो, सबसे कम एनर्जी किसमें होगा बच्चों? 2p में, क्योंकि 2p सबसे पास होगा सेंटर के. पहली बेंच वाला बच्चा ज्यादा नाटक नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी. इज इट क्लियर? नाउ यहां पर भी बच्चों क्या होगा? यू विल गेट सम नोड्स. कितना मिलना है बच्चों? नोड्स. सो एक तो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है, दैट इज बाय डिफॉल्ट फॉर ऑल द ऑर्बिटल. तो इसको हम नोड नहीं कहेंगे, इसको हम नोड नहीं कहने वाले हैं. राइट. सिमिलरली जब इनफाइनाइट चले जाओगे तो वहां भी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 हो जाएंगे. बिफोर द ओरिजिन एंड इनफाइनाइट देयर आर सम अदर डिस्टेंसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 होते हैं. सो आई विल राइट इट हियर. बिसाइड ओरिजिन and infinity there are some other distances where probability of finding electron is 0. Okay, तो कितना होगा बच्चों? For p orbital your nodes are going to be, number of nodes for p orbitals are going to be n minus 2. P orbital has a number of nodes equal to what? N minus 2. You will get n minus 2 number of nodes for p orbital. इसका मतलब क्या है बच्चों? समझना ध्यान से. If it is, I will write 2p and I will write nodes here. So for 2p orbital n equal to 2, number of nodes is n minus 2. मीन्स यहां पे आपका नंबर ऑफ नोड कितना हो जाएगा? 0. मतलब यहां पे सेंटर और इंफिनिटी के बीच में ऐसा कोई रीजन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 हो. ओके. व्हाइल इन द केस ऑफ 3p योर नोड इज गोइंग टू बी 3 minus 2, दैट इज n minus 2. नंबर ऑफ नोड कितना है बच्चों? p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड है n minus 2. राइट. डिस्टेंस के साथ कितनी जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस 0 होंगे. तो यहां पे क्या होगा बच्चों? 3p में ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 रहेंगे. 3p ऑर्बिटल में ओरिजिन पे तो इलेक्ट्रॉन मिलना ही नहीं है, इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलना है. ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में कोई ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 रहेंगे इन द केस ऑफ 3p ऑर्बिटल. सिमिलरली इन द 4p ऑर्बिटल there are going to be 2 such distances where there is no chances of finding the electron. Are you getting it? 0 and infinity के बीच में यहां पे ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले. यहां पे एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं है. यहां पे 2 ऐसे डिस्टेंस आएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस नहीं है. Is it clear? This is all about the p orbital. Is it clear? P orbital. Okay, what is the shape of p orbital? Dumbbell. Okay, copy it. So now let's talk about the d orbital.
and we knows that for d orbital there are 5 possible values of the magnetic quantum number. Okay, and the shape of the d orbitals are double dumbbell. Shape of the d orbital is what? It is double dumbbell shape, right? So what we are going to do here? Very simple. D orbital which have L equal to 2, possible magnetic quantum number -2, -1, 0, +1, +2. There are totally 5 d orbitals you will get. Let's see कौन सा है ये d orbital. So these are the 3 coordinate axes, right? Let's say these axes are x, y, z. You can take it all your convenience, right? Now see, the name of the d orbitals are dxy, dyz, dzx. Okay, let me draw them all in the same line. एक ही लाइन में सारे मैं ड्रॉ करता हूं. dxy, dyz, dzx, dx square minus y square, and dz square. They are the 5 d orbital. Okay, now what is this dxy mean? The shape of the d orbitals are double dumbbell. The shape of the d orbitals are double dumbbell. Okay, double dumbbell means there are going to be 4 lobes. Because एक डंबल में बच्चों 2 लोब्स होते हैं, एक डंबल में 2 लोब होते हैं, तो डबल डंबल में 4 लोब होंगे. तो यहां पे क्या है बच्चों? इन द dxy the lobes lies in xy plane. लोब्स कहां पे होंगे बच्चों? लोब्स लाइज इन xy प्लेन. चलो यहां पे xy प्लेन कहां पे मैं बताता हूं आपको. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है. ओके, तो आपका xy प्लेन कौन सा होगा बच्चों? देखना ध्यान से. This is going to be your xy plane. This will be your xy plane. Yes or no? Yes or no? Can you see it your xy plane? और ये z कैसा है बच्चों? आपका xy प्लेन को परपेंडिकुलर है. z एक्सिस कैसा है बच्चों? xy को परपेंडिकुलर है. दिस इज योर xy प्लेन एंड z जो है ना वो ऐसे है. इज इट क्लियर? कैन यू विजुअलाइज दिस? Now where are the lobes? The lobes lies within this xy plane. ये xy प्लेन के अंदर बच्चों lobes है. ओके, तो देखना मैं हाथ के ऊपर xy प्लेन बना रहा हूं. ये आपका x है, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अभी दिखाऊंगा मैं ऐसे घुमा के. दिख रहा है ना? This is your x and this is your y. These are your xy axis. ओके, प्लेन ऐसे है. अब लोब कहां पे आपको बताता हूं मैं. तो these are the lobes. 1, 2, 3 and 4. These are the 4 lobes. Can you see that the 4 lobes? And these 4 lobes are in which plane? They are in xy plane. कहां पर है बच्चों? ये 4 लोब जो है वो xy प्लेन के अंदर है. बोलो आई बात समझ में है ना? तुम्हारा टीचर बहुत क्रिएटिव. ओके, फाइन. सो हियर योर xy प्लेन के अंदर आपको लोब दिखा रहा है बच्चों. तो मैं ऐसे दिखाऊंगा xy प्लेन के अंदर. These are your lobes in xy plane. कहां पर है बच्चों? आपका लोब्स जो है वो xy प्लेन के अंदर है. इज इट क्लियर? तो आप क्या करोगे बच्चों? ये एक्चुअली 3D फिगर है. आपको 2D में दिखाना है तो आप क्या करोगे? x और y एक्सिस के बीच में एक लोब लगा दोगे और दूसरा उसके साथ ऊपर लगा दोगे. राइट नाउ व्हाट विल हैपन इन दैट dyz? चलो dyz में क्या होगा? आई विल अगेन टेक 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक आपको समझ में आ गया तो अब कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए. This is x, this is y, this is z. Now where is your xz plane? xz plane कहां पर है बच्चों? तो x जो है वो आपका ये एक्सिस है, z जो है वो आपका ये एक्सिस है. मतलब this is your xz plane. यही आपका xz प्लेन है. ऐसे ही आपका xz प्लेन है क्योंकि ये आपका x एक्सिस है बराबर. ओके, और ये जो वर्टिकल है वो कौन सा एक्सिस है? z एक्सिस है. दिख रहा है आपको? x आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और z कैसा एक्सिस है? वर्टिकल. मतलब आपके 4 लोब जो है ना वो ऐसे ही है आपके सामने. पहले वाले में 4 लोब ऐसे थे. It was like this. Yes or no? Yes or no? दूसरे वाले में आपका 4 लोब आपके सामने है इस तरह. राइट. So how will I draw this? I will draw it like मैं x और y के बीच में बच्चों एक लोब बनाऊंगा ऐसे. This is x. कौन सा? ये yz है ना? ओके सॉरी, ये yz है ना, तो yz पे बनाना पड़ेगा. ओके, इसका एग्जैक्ट शेप जो है ना बच्चों 3D 2D दिखाना मुश्किल है. चलिए, तो कहां दिखाना है? yz के बीच में. तो एक आप yz के बीच में ले लो और एक एग्जैक्टली उसके बाजू में ऐसा बना दो.
ओके, थर्ड वन, व्हाट इज डी जेड एक्स? डी जेड एक्स कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, वापस कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे बच्चों। दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई, दिस इज योर जेड। नाउ व्हाट इज एक्सैक्ट प्लेन? एक्सैक्ट प्लेन कहां है पहले ये बताओ मुझे। ये कौन सा आपका वाईजेड था ना? एक मिनट करेक्शन करो, वाईजेड प्लेन कहां पर है? वाई एक्सिस तो ये वाला है, वाई एक्सिस तुम्हारी तरफ आ रहा है बाहर ऐसे, वाई एक्सिस बच्चों ऐसे आ रहा है तुम्हारी तरफ बाहर, इट इज वाई एक्सिस जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये एक्स एक्सिस था कौन सा है? वाई जेड है ना, जेड ऐसे है, टू एक्सिस। ये कौन सा है? वाई है जो आपकी तरफ आ रहा है ये वाला, और ये कौन सा है बच्चों? आपका जेड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका प्लेन कौन सा बनेगा? दिस विल बी द प्लेन लाइक दिस, ऐसे बनेगा बच्चों ये प्लेन, ये वाला जो है ना, दिस प्लेन इज लाइक दिस, क्योंकि ये आपके दो एक्सिस है। चेक इट आउट, यस और नो? आगे ना, चलो मैं आपको यहां पे प्लेन बना के दिखा देता हूं ताकि आपका लॉजिक एकदम क्लियर हो जाए। वी वांट टू फॉर्म द प्लेन इन वाई जेड, सो दिस विल बी द प्लेन इन वाई जेड। ऐसा होगा आपका वाई जेड प्लेन, वर्टिकल इस तरह। पहले में लोब बच्चों ऐसे है, पहले वाले में ऐसे है लोब, दूसरे वाले में ऐसे है लोब, और तीसरे वाले में फाइनली आपके सामने होगा ऐसे। सो द थर्ड वन, विच प्लेन इज दिस? जेड एक्स। तो एक्स ये रहा, जेड ये रहा, तो दिस विल बी अ प्लेन जो आपको एग्जैक्टली आपके सामने दिखेगा। एंड योर लोब्स आर लाइक दिस, दिस आर योर लोब्स। गॉट इट? गॉट इट? पहले वाले के लोब्स बच्चों ऐसे हैं, आपको दिखने वाले नहीं है ये लोब, बट आपको दिखना नहीं है, आपको ऐसे दिख रहा है। ओके, फर्स्ट वन कौन सा है बच्चों? डी एक्स वाई। डी वाई जेड कैसा है? डी वाई जेड ऐसे है, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस। समझो बच्चों, लोब्स इस तरफ है, आपको दिखना नहीं है, ऐसे है वो। एंड डी जेड एक्स एग्जैक्ट आपके सामने ऐसे, तो आपको दिख रहा है डी जेड एक्स एज इट इज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू आर वेरी सिंपल। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा बच्चों? यहां ड्रॉ करते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज द सिंपलेस्ट वन, क्योंकि यहां पे सीधे जो लोब्स है ना वो एक्सिस के ऊपर ही है। एक लोब जो है बच्चों वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और दूसरा जो लोब है वो वाई एक्सिस के ऊपर है। दिस लोब्स आर ऑन द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑन द एक्सिस। एक डंबल एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक डंबल वाई एक्सिस के ऊपर है, राइट। एंड फाइनली इन डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर जो है ना बच्चों उसके दोनों डंबल जो है ना वो जेड एक्सिस के ऊपर ही है, एंड इट इज लाइक दिस, इट इज द डी जेड स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई जेड, एंड दिस आर योर लोब्स लाइक दिस। तो डी जेड स्क्वायर जो है ना बच्चों उसका बाउंड्री लेयर डायग्राम बाकी चारों से थोड़ा अलग है। डी जेड स्क्वायर का जो बाउंड्री लेयर डायग्राम है वो बाकी चारों से थोड़ा अलग है, बिकॉज बाकी चारों डबल डंबल के फॉर्म में है, राइट। ये पहले वाला जो है वो इस प्लेन में है, दूसरे वाला जो है वो इस प्लेन में है, तीसरे वाला जो है वो इस प्लेन में है, और चौथे वाला एक्सिस के ऊपर है, राइट। और डी जेड स्क्वायर जो है उसका शेप अलग है। दिस ऑल हैव सेम एनर्जी। ये सारे के सारे डी ऑर्बिटल का एनर्जी कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। सो आई विल राइट इट हियर, ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट द डी ऑर्बिटल। आपको समझ में आया बच्चों डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है वो? क्लियर एकदम, क्लियर एकदम डी ऑर्बिटल खाली। ओके, तो नोड्स आर, we have already discussed, nodes are the region where there is no chances of finding the electron. So I will write here region of zero probability of finding the electron, region of zero probability of finding electron. Right, now there are basically two types of node. One is called as radial node, while other is called as angular node. Okay, what is radial node? Radial node means न्यूक्लियस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेडियल नोड। सो रेडियल नोड्स आर द डिस्टेंस वेयर probability of finding electron is zero. Distance where the probability of finding the electron is zero
Okay, that is called as radial node and number of radial nodes are equal to radial node होता है बच्चों n minus l minus 1. कितना होता है बच्चों? नंबर ऑफ रेडियल नोड इज n minus l minus 1. n is principal quantum number, l is azimuthal quantum number, minus 1 is will give you the radial node. कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में डिस्टेंस के साथ कितने बार इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो होंगे. Okay, and second is the angular node. Angular nodes are the plane where there is no chances of finding the electron. The planes where there is no chances of finding electron. The planes where there is no chances of finding the electron is called as angular nodes. जैसे कि बच्चों, if I talk about the px orbital, listen to me very carefully everyone. If I talk about the px orbital, तो ये है बच्चों आपका px orbital. Wait a second. Okay, so this is your px orbital like this. So if the orbital is along the x-axis, so will there be any chance of finding the electron on yz plane? ऑर्बिटल आपका x के ऊपर है, तो क्या इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई चांसेस आपको दिख रहे हैं जो सेंटर में से पास हो? What I want to tell is, if your orbital is along the x-axis, तो yz प्लेन जो है ना बच्चों, yz प्लेन, उस yz प्लेन पे इलेक्ट्रॉन मिलने वाला ही नहीं है, बिकॉज ऑर्बिटल तो कहां पर है? x-axis के ऊपर है. मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने का सारा चांस कहां पर है? x-axis के ऊपर है. तो yz प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन मिलना ही नहीं है. Yes or no? Are you getting what I want to say? If the orbital lies along the x-axis, that means all probability of finding the electron is along the x-axis. So there will be no probability of finding the electron perpendicular to this. Means this plane is called as a node, and that is called as angular node. Okay, so angular nodes are the plane where there is no chances of finding the electron, and the number of angular node is equal to L. Number of angular node is equal to what? L. And the total number of node कितना हो जाएगा बच्चों? Total node is equal to, it is n minus l minus 1. It is L. If you add both of them, L will cancel. Total node is n minus 1. Total node कितना होगा बच्चों? n minus 1 जितना होता है total number of nodes. What is this? n minus 1. Okay, let's do 2-3 simple example. Here I give you the orbital, and you will be finding, this is your orbital, you will find the radial node, and here you will find the angular node. Okay, let's say the orbital is 4f, 5d and 3p. Okay, चलिए बच्चों, फर्स्ट वन n इक्वल टू 4. f ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है? तो हमने ऐसा देखा था बच्चों, s p d f, s p d f 0 1 2 3. तो f के लिए आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कितना होगा बच्चों? 3 होगा. तो इस ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें तो इस ऑर्बिटल का n का वैल्यू कितना है? 4 है, और f के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है. f ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 3 होता है. चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेडियल नोड. रेडियल नोड कितना होता है बच्चों? n minus l minus 1. पुट इट देयर. n कितना है बच्चों? 4 है. 4 माइनस l कितना है? 3 minus 1. 4 minus 3 minus 1. 4 minus 3 minus 1. रेडियल नोड इज 0. रेडियल नोड क्या होगा? 0 होगा. मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है. ओके, व्हाट अबाउट द एंगुलर नोड? तो एंगुलर नोड कितना होगा? जितना l है, l का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है. तो एंगुलर नोड कितना होगा यहाँ पे? 3. टोटल नोड कितना होगा? 0 plus 3, that is 3. टोटल नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू 3. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर सबको व्हाट इज नोड? फाइन. चलिए सेकंड एंड थर्ड का मुझे आंसर दीजिए, नोड कितना आएगा?